Hello, a very good evening to everyone. So, let us continue our sheet discussion. Last lecture we had discussed the 9th question. So, today we will be starting with 10th question. So, 10th question says, find the ratio of the areas in which the curve y equals to greatest integer function of x cube by 100 plus x upon 35 divides the circle x square plus y square minus 4x plus 2y plus 1 equals to 0. So, 10th question mein what do we have is basically a circle whose equation is x square plus y square minus 4x plus 2y plus 1 equals to 0. And we have a line which is y equals to greatest integer function of x cube by 100 plus x upon 35. Perfect. And what we have to do is हमें इन दोनों के बीच के जो इस लाइन ने इस वाले सर्कल को जिन दो एरियाज में डिवाइड करना है उनके एरिया का रेशियो पता करना है. लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन. सबसे पहले तो इस सर्कल की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं. सो व्हाट वुड बी दिस? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिड्यूस करेंगे तो ये जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर is equals to 2 square which is 4. So what is this circle representing? It is representing a circle whose center is 2 comma minus 1 and whose radius is 2. So this is what this line is representing right now. Perfect. और हमें पता करना है कि इस सर्कल को ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है. दैट इज व्हाट वी हैव टू बेसिकली फिगर आउट. नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्यूब अपॉन 100 प्लस x अपॉन 35 इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. सो दिस इज गोइंग टू बी सम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, बट y इक्वल्स टू की वैल्यू चेंज होती जाएगी. तो इस लाइन का डिस्टेंस x एक्सिस हमेशा डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ x, बट व्हाट वी गेट इट इज गोइंग टू बी a combination of line segments parallel to x-axis. Now, is key value is dependent upon the value of x. Now here x can vary from minus infinity to plus infinity. But are we interested in its complete domain? I'll say not, because we are interested only in this domain जिसमें ये x vary करता है. जिस डोमेन में ये x वेरी करता है, दैट इज इस सर्कल का x वेरी करता है, उसी डोमेन में हमें इस लाइन की इक्वेशन पता करने की जरूरत है. उसके अलावा वी आर नॉट राइट नाउ कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड विद द नेचर ऑफ दिस लाइन. सो जस्ट इन द डोमेन इन विच x इज वैलिड फॉर दिस सर्कल हमें इस लाइन का नेचर या फिर वैल्यू पता करनी है. सो लेट अस फर्स्ट डिफाइन द रेंज ऑफ x फॉर दिस फंक्शन. इस वाले फंक्शन के लिए हम x का डोमेन पता कर लेते हैं. सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर? आई कैन राइट y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर और y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट. सिंस इट इज एन अंडर रूट हियर विच मीन्स 4 minus x minus 2 whole square has to be greater than or equals to 0, or I can say x minus 2 whole square has to be less than 4, which means x minus 2 whole square lies between minus 2 to plus 2, sorry, x minus 2 lies between minus 2 to plus 2 or x lies between 0 to 4. So यहाँ से मुझे मिला हमारा x just lies between 0 to 4, and when x lies between 0 to 4, तो what would x cube upon 100 plus x upon 35 lie between? See, 0 is the minimum value, तो उस पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, so the minimum value is 0. Or when x would be 4, so this would be 4 cube upon 100 plus 4 upon 35, and this is some value which is less than 1, because this would be 164 upon 100 upon 4 upon 35,
5. So what we are going to get is, sorry, this would be 64 upon 100, which would be 0.64 plus 4 upon 35, which is going to be some value in point again. So this value in total is going to be less than 1. So we get x lies between 0 to, sorry, x cube upon 100 plus x upon 35 is going to lie between 0 to 1, which means greatest integer of function of x cube upon 100 plus x upon 35 is going to be equals to 0. ये क्वेश्चन का पार्ट सभी को समझ में आया? हमने किस तरह से एज ए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्यूब अपॉन 100 प्लस x अपॉन 35 की वैल्यू निकाली. इज एवरीवन क्लियर? देखिए एक और बात समझाती हूं. ये जो फंक्शन है हमने इसमें देख लिया था कि जो x का y का जो नेचर है इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन x एंड द डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज x वेरिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट द डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज दैट x कैन वेरी फ्रॉम -2 टू +2. ये हमने इसे सॉल्व करके निकाला मैकेनिकली, बट देयर वाज वन मोर डायरेक्ट वे टू फाइंड आउट. देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूं, so just by visualizing I know this point A corresponds to the minimum value of x and this point B corresponds to the maximum value of x. Perfect. This is a diameter parallel to x axis. So if this point is -2, 1, radius of the circle is 2, so ये point होना था 0, -1 और ये point होना था 4, -1. So हम यहाँ से भी लिख सकते थे डायरेक्टली कि x would vary from 0 to 4 and the point is कि we are just interested in this domain of x, क्योंकि इसी में हमारा सर्कल वैलिड है और इसी डोमेन के लिए हमने x क्यूब अपॉन 100 प्लस x अपॉन 35 की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली. सो वी गॉट x क्यूब अपॉन 100 प्लस x अपॉन 35 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 64 अपॉन 100 प्लस 4 अपॉन 35 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0, which means this complete value lies between 0 to 1, which means its greatest integer function would be 0. So this line corresponds to y equals to 0 in the domain 0 to 4. Perfect. So इस सिचुएशन में हमारी दूसरी लाइन क्या हो गई y equals to 0, which means x axis, which means this line. So हमें इस पोर्शन और बेसिकली इस पोर्शन के एरिया का रेशियो निकालना है. गेटिंग इट? अब मुझे बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल. आई विल से द एरिया ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल इज पाई आर स्क्वायर and r is 2, so this area of this circle is 4 pi, which is area of circle. Let us say this point is P Q R. So what is the area of this region? P Q R P. I'll say it would be the area under this curve. So curve की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं? यहां से मैं लिख सकती हूं द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज -1, just a minute, I can say this would be integral f of x into dx, x varying from x1 to x2, which are the abscissa at the points at which the circle intersects x axis. Now what is f of x? F of x is -1 plus under root 4 minus x minus 2 whole square into dx. और how we are sure कि हमने सिर्फ यहाँ पे इसी वाले एरिया को कंसिडर किया है and we are not consider the area which is below the x axis, क्योंकि हमने y को यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया है. इस इक्वेशन को लेते टाइम while defining this f of x we have just considered that y is positive, इसीलिए हमने यहाँ पे इसे -1 plus 4 minus x minus 2 whole square लिखा है. नेगेटिव वाला पार्ट कंसिडर करते हैं तो मैं जब y plus 1 स्क्वायर लेती तो मैं यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन कंसिडर करती. समझ में आ रहा है कि हमने कैसे इंश्योर किया कि हम सिर्फ इस
पॉजिटिव एक्सिस वाले एरिया को ही ले रहे हैं, पॉजिटिव y वाले एरिया को ही ले रहे हैं. नाउ लेट अस फाइंड x1 and x2. So x1 and x2 are basically the intersection of this circle with x axis. तो उसके लिए let us put y equals to 0. So I get in this equation I put y equals to 0. So I get x square minus 4x plus 1 equals to 0, which means 2 plus minus under root which means 4 plus minus under root 16 minus 4 upon 2 are the roots of this equation. So x1 की वैल्यू क्या होगी 2 plus root 3 and 2 minus root 3. x1 would be 2 minus root 3 and x2 would be 2 plus root 3. So these are the intersection or these are the abscissa of the point of intersection of circle with x axis. इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे. So we'll get PQ RP का एरिया and let us say this is some value capital Y and let us say this is some value K. So what is the ratio that we are going to get? जो रेशियो हमें पता करना है that is this upon this, which means K upon 4 pi minus K, and 4 pi is the area of the complete circle. So this is the ratio that we have to get. इसको सॉल्व करके आप सभी K की वैल्यू तो निकाल सकते हैं. It's a simple integration that you have to solve, and once you solve this integration, so whatever value of K you will get, K upon 4 pi minus K is going to give me the area, the ratio of the area of these two parts. क्वेश्चन सभी को समझ में आया? आसान सा क्वेश्चन था. The only tricky part was to कि हमें इस y equals to greatest integer function of x cube upon 100 plus x upon 35 को समझना था कि what is this line going to represent. क्योंकि इस लाइन का डोमेन तो इंफिनिटी टू रियल नंबर्स है, मतलब माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट हमें ये समझना था कि वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन ओनली दोज वैल्यूज ऑफ x which lie in the domain of this circle. बस इसी चीज को समझ के हमें इस इक्वेशन को एनालाइज करना था एंड देन फाइंडिंग द एरिया आई थिंक वाज एन इजी पार्ट. उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, बस इन पार्टों को समझना था. सो बेसिकली दैट वाज हैपेंस विद एरिया अंडर कर्व्स के क्वेश्चंस. क्वेश्चन में फाइंडिंग एरिया इज नॉट डिफिकल्ट बट एनालाइजिंग द क्वेश्चन इज अ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ इट. जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन देन प्रोसीड टू 11th क्वेश्चन. सभी इस क्वेश्चन को पहले नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let us solve question number 11. So let us see what the 11th question says. 11th question says we have to find out the area of the region containing the point satisfying mod y plus 1 by 2 is less than or equals to e to the power minus mod x subject to the condition maximum of mod x comma mod y is less than or equals to 2. So we have a graph whose equation is mod y plus 1 by 2 is less than or equals to e to the power minus mod x, and the condition is maximum of mod x comma mod y has to be less than or equals to 2. So what is the first step in finding the area bounded by any curve? Let us first draw the curve for this equation. This is a different type of equation in which we have mod y plus 2 is less than 1 by 2 is less than or equals to e to the power minus mod x. तो क्या सभी को mod से रिलेटेड कर्व्स ड्रॉ करने आते हैं? तो mod x या mod y दिया हो तो हम कर्व्स को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं? Does everyone know? I'll show you. Let us consider this example y equals to mod x. हमें इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो बताइए what should be the first step? What I see first is कि यहाँ पे y is always going to be positive because y is equals to modulus of something. So it has to be a positive quantity. So अगर y equals to x का ये फंक्शन था, ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा कंसिडरिंग द फैक्ट कि y कैन नॉट बी नेगेटिव. दूसरा में क्या देखते हैं, जो बिहेवियर प्लस एक्स एक्सिस में हो रहा है वही बिहेवियर माइनस एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए, विच मीन्स कर्व कुछ ऐसा होगा. सिमिलरली जो बिहेवियर माइनस एक्स एक्सिस में होगा वही प्लस एक्स एक्सिस में भी फॉलो होगा, बट माइनस एक्स एक्सिस में ग्राफ इज नॉट डिफाइंड इवन. So y is equals to mod x का ग्राफ ये है. Now let us trace the graph for mod y equals to x. Here what is the condition?
x has to be positive. Perfect. So let us draw the graph for mod y equals to x. तो पहले y equals to x का ग्राफ ड्रॉ किया. ये रीजन हम फिर एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव. अब जो नेगेटिव y एक्सिस में होगा वही पॉजिटिव y एक्सिस में भी होना चाहिए. मतलब जो प्लस y के लिए हो रहा है उसे ही रेप्लिकेट कर दो. तो दिस इज द ग्राफ फॉर mod y equals to x. तो ये हमारा ग्राफ हुआ y equals to mod x and this is the graph for mod y equals to x. कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम mod y या mod x हो तो ग्राफ को किस तरह से ड्रॉ करते हैं. नाउ लेट अस अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट एंड ड्रॉ द कर्व फॉर दिस इक्वेशन. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे y प्लस 1/2 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, जैसे दिस इज माई कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो व्हाट वी आर डूइंग फर्स्ट इज ड्रॉइंग अ ग्राफ फॉर y equals to minus 1/2 plus e to the power minus 6. Okay, what is this curve? e to the power minus 6 को minus 1/2 से डिस्प्लेस कर दो तो ये ग्राफ मिलेगा. So let us say this is my graph for e to the power minus 6 plus minus 1/2. ये ग्राफ कहाँ से पास करेगा? 0, -1/2 से. x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ln 2, 0 पे. और ग्राफ की एसिम्पटोट क्या होगी? ग्राफ की एसिम्पटोट इस केस में होगी x इक्वल्स टू -1/2. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपली e टू द पावर -6 के ग्राफ को -1/2 से डिस्प्लेस कर दिया. सो दिस इज x इक्वल्स टू -1/2 एंड दिस इज माई ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू -1/2 plus e to the power -6. Okay, now let us find the graph for mod y equals to -1/2 plus e to the power -6. अब यहाँ पे क्या होगा कि this thing has to be greater than 0. -1/2 plus e to the power -6 has to be greater than 0. So यहाँ से इस ग्राफ की डोमेन क्या आ जाएगी? सिर्फ 0 से लेकर ln 2. और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है वही नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी होना चाहिए. मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा. क्लियर सभी को? सो दिस इज माय ग्राफ फॉर mod y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर -6. ठीक है, हम हमेशा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देख रहे हैं. सो ये हो गया मेरा ग्राफ y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर -6 का, और ये है y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर -6. अब लेट अस ट्राई टू ड्रॉ ग्राफ फॉर इससे mod y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर -mod x. ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होना था वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होना, या फिर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता है वही नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी कर दो. मतलब इस ग्राफ में पहले तो क्या हो गया कि y हैज टू बी x, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है उसी को हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी करना है. व्हाट दिस मीन्स कि जैसा ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ड्रॉन है वैसा ही नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए भी कर दो. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा. कुछ इस तरीके का हो जाएगा. ये होगा हमारा ग्राफ -1/2 प्लस e टू द पावर -mod x का. Perfect. Now last we will be drawing the graph for mod y equals to -1/2 plus e to the power -mod x. So इसी ग्राफ में जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा वही हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी करेंगे. तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा. दिस वुड बी अवर ग्राफ फॉर mod y 1/2
e to the power minus mod x. So in all, our graph is going to be this area going to be a curve of this type, और जो area हमें पता करना है that is going to be this shaded area. So what we basically have to find is this area which I am shading right now. So हमें इस एरिया की वैल्यू निकालनी है. क्या सभी को समझ में आ रहा है कि हमने अल्टीमेटली ग्राफ कैसे ड्रॉ किया? एक स्टेप प्रोसीड किया. पहले y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का ड्रॉ किया, फिर मॉड y इक्वल्स टू -1/2 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स का ड्रॉ किया. और एक्चुअली हम यहीं से डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते थे. इसी ग्राफ में जो चीजें प्लस एक्स एक्सिस के लिए हुई थी हम उसे यहाँ पे ही माइनस एक्स एक्सिस के लिए ड्रॉ कर देते तो हमें ये कर्व मिल जाता. हमने से 4 स्टेप्स मिलके एक्चुअली हम यहीं से थर्ड स्टेप से भी ग्राफ डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते थे. तो सभी को क्वेश्चन समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? ये एरिया कैसे निकाला, मतलब हाउ डिड वी ड्रॉ द कर्व, ये कैसे समझ में आया? बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, टू ड्रॉ दिस कर्व. नाउ लेट अस ट्रेस द एरिया अंडर दिस कर्व. सो व्हाट आई सी इज दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन. तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल दूं तो मैं सारा एरिया निकाल दूंगी, बिकॉज इट वुड बी दिस एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4. So let us say this point is A, this is our origin O, and this is B. So my area, total area is going to be 4 times area AOB. And what is AOB? It is integral 0 to ln 2 minus 1/2 plus e to the power minus x dx. इसको कैलकुलेट कर दिए. वॉट एवर वैल्यू विल गेट इज गोइंग टू बी दिस एरिया. इट विल बी 4 minus 1/2 minus e to the power minus x and limits are 0 to ln 2. Whatever this calculation gives us, it is this area. सपोज इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में कर्व ड्रॉ करना. फाइंडिंग एरिया वाज रियली सिंपल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज टू ड्रॉ दिस कर्व. सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड कि हमने कर्व किस तरीके से ड्रॉ किया? परफेक्ट. कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिए. दिस वाज अ रियली गुड क्वेश्चन एंड अ गुड क्वेश्चन ऑन कर्व ट्रेसिंग. इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अप्लाई था. इंडीड अ गुड क्वेश्चन. सभी को क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए. Perfect. So just note down this question, then we will discuss 12th question. क्या मैं ये साइड erase कर सकती हूँ? Or should I wait for you to note down? Okay, perfect. आप note down कर लीजिए, then we'll proceed to the next question. Now let us solve question number 12. So 12th question says, let C1 and C2 be the graph of functions y equals to x square and y equals to 2x, x lying from 0 to 1. Let C3 be the graph of a function y equals to f of x, again x lying from 0 to 1 and f of 0 equals to 0. Then for a point P on C1, let the line parallel to x axis meet C2 and parallel to y axis meet C3 respectively. If for every position at Q and R respectively. If for every position of P on C1, the area of the shaded regions OPQ and ORQ are equal, determine the function f of x. So 12th question में we have been given two functions. Just a minute, yeah. Y equals to x square and y equals to 2x. And what is the condition they are subjected to? Is x lies from 0 to 1. Perfect. Let C3 be the graph of a function f of x. So this corresponds to C1, this corresponds to C3, C2, or C3 is a function, C3 is a function f of x. Again x lying from 0 to 1 and I know f of 0 is equals to 0. Now
they say for a point P on C1, let the axis parallel to x, let a line parallel to x axis meet C1. So इसी को ड्रॉ करते हैं C2. So इसी को ड्रॉ करके समझते हैं. Let us first draw a function y equals to x square. So this is my function y equals to x square, a function parabola symmetrical about y axis because it has even powers of y, and we know our domain is just 0 to 1. Next let us draw the line y equals to 2x. So this is my line y equals to 2x. Okay, and our range is just x varying from 0 to 1. Let us say this is 0, this is 1. This is my function C1, this is C2. And let us draw one more function f of x, which is C3. Let us say this is C3. Okay. Now, what they are saying, let the line through P is a point on C1. Let a line through P parallel to x axis meet C2 at Q. So यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की parallel to x axis which meets C2 at Q. Okay, and the line parallel to y axis meets C3 at R. So यहाँ से एक लाइन parallel to y axis meets C3 at R. Now the next condition they say is the area of the shaded regions OPQ, that is this region, and OPR are equal, which means this area and this area are always equal for all values of P in the domain 0 to 1. Determine the function f of x. So question कुछ ऐसा है, समझिए हमारे पास तीन फंक्शंस है C1, C2 और C3. C1 पे कोई भी पॉइंट है P, जब P से हम एक एक्सिस लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस तो वो C2 को मिलती है Q पर, और P से जब लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू y एक्सिस तो वो मिलती है R पर. Now what they are telling is कि this area OPQ and OPR are always equal. ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे ऐसा फंक्शन f of x हमें पता करके बताइए. This is what they are asking for in the question. समझ में आ रहा है क्वेश्चन सभी को? C1 फंक्शन है, C2 फंक्शन है और C3 फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है. सब्जेक्टेड टू द कंडीशन कि P दैट इज C1 से ड्रॉ करो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, C2 को मिले Q पे और C3 को मिले R पे. सो ये दोनों एरियाज इक्वल हो ऐसा हमें फंक्शन डिटरमाइन करना है. सो व्हाट वी नो हियर इज एरिया ऑफ OPQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OPR. ये हमें क्वेश्चन में दिया है एंड दिस इज द डेटा दैट वी हैव टू यूज. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस एरिया OPQ. इसको कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप्स लेंगे तो हमें ये ग्राफ के नीचे का एरिया मिलेगा. सो वी विल टेक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स. सो व्हाट वुड बी दिस एरिया? दिस वुड बी इंटीग्रल, यहाँ पे फंक्शन है y equals to root x and we will be needing a function in terms of y. So we will have root y dy minus y by 2 dy integral, and what would be the limits? Let us say p के coordinates है x, x square. ठीक है, तो y कहां से कहां तक वेरी करेगा? 0 से x स्क्वायर तक. मैंने यहाँ पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं. सो हमारा y कहां से वेरी करेगा? 0 से लेकर x स्क्वायर तक. सो व्हाट वुड बी दिस एरिया OPQ? इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू y to the power 3 by 2 upon 3 by 2, y varying from 0 to x square minus y square by 4 y varying from 0 to x square. Perfect. So this would be equals to x cube upon 3 by 2 minus 0 minus x to the power 4 by 4 minus 0.
दिस एरिया इज 2x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4. सभी को समझ में आया? नाउ लेट अस फाइंड दिस एरिया, that is this area ORP. So what would be the area ORP? OPR, area OPR is going to be equals to integral 0 to x C1, that is x square dx, minus integral 0 to x f of x dx. ठीक है, सो वी गेट एक्स क्यूब बाई 3 वेरिंग फ्रॉम 0 टू x माइनस इंटीग्रल 0 टू x f of x dx. सो यहां से व्हाट डू आई गेट एक्स क्यूब बाई 3 माइनस f of x. दिस इज माई एरिया OPR. नाउ OPQ इज इक्वल्स टू OPR. ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो लेट अस इक्वेट दीज टू एरिया. सो ऑन इक्वेटिंग दीज टू एरियाज व्हाट विल आई गेट? इक्वेटिंग टू एरियाज आई विल गेट x 2x क्यूब बाई 3 माइनस x टू द पावर 4 बाई 4 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल f of x dx limit 0 to x. Perfect. So what I get? X cube by 3 or get x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 is going to be equals to minus f of x dx limit 0 to x. So let us differentiate. Differentiate करने पे हमें क्या मिलेगा? On differentiating I'll get x square by 6, sorry 3x square by 2, 3x square by 3 which gives me x square minus 4x cube by 4 which gives me minus x cube is equals to minus f of x into dx, or I get x cube minus x square is equals to f of x. So यहाँ से हमें मिला f of x is equals to x cube minus x square. So this is my function f of x. सभी को क्वेश्चन समझ में आया हमने कैसे सॉल्व किया? एक बार और वापस से रिवाइज करते हैं. क्वेश्चन में हमें तीन फंक्शंस दिए थे, c1, c2 और c3. c1 was representing y equals to x square, c2 was representing y equals to 2x and c3 was representing some function f of x. कंडीशन हमें क्या दी थी कि C1 पे कोई भी पॉइंट ले लो और उससे एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो x एक्सिस के और एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल y एक्सिस के. सो अगर x एक्सिस की पैरेलल लाइन मिली C2 पर Q पर और C3 पे मिली R पर, तो ये एरिया OQP और OPR हमेशा इक्वल होते हैं. ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करता हो हमें एक फंक्शन f of x पता करना था. तो हमने क्या किया, पहले इन दो एरियाज को फाइंड आउट किया. सो हमें पहले फाइंड आउट किया एरिया ऑफ OPQ. हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ली क्योंकि हमें ये एरिया पता करना था. अगर हमें नीचे वाला एरिया पता करना होता तो हम वर्टिकल स्ट्रिप्स लेते हैं जैसा हमने OPR के लिए किया, बट OPQ के लिए we took horizontal strips and that's why we took dy का इंटीग्रल. So we had root y dy minus y by 2 dy. सॉल्व करने पे we got this value. So this was my area OPQ. फिर हमने एरिया OPR फाइंड आउट किया एंड वी गॉट OPR वाज इक्वल्स टू दिस. जब दोनों एरियाज को इक्वेट करके डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गई f of x की वैल्यू. सो इट वाज अ इजी क्वेश्चन, जस्ट दैट क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन इस केस में इंपॉर्टेंट था. दिस वाज अ क्वेश्चन मोर बेस्ड अपॉन कि हम क्वेश्चन को कितनी आराम से पढ़े और कितने अच्छे से इंटरप्रेट कर ले. एग्जामिनेशन में अगर इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया हो तो यूजुअली हम इंटरप्रिटेशन में ही कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं और फिर हमारा पूरा क्वेश्चन आगे रॉन्ग हो जाता है. दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट. समटाइम इंटरप्रेटिंग एंड एनालाइजिंग द क्वेश्चन इज अ बिग पार्ट. सो इन आई फील कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन ईजी था, कॉन्सेप्ट भी इतना ज्यादा नहीं था, बट द इंपॉर्टेंट वाज टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन करेक्टली एंड सॉल्व द क्वेश्चन. सो 12th क्वेश्चन सभी ने सॉल्व कर लिया. I mean everyone is comfortable with the 12th question. सभी ने इसे नोट डाउन भी कर लिया है.
Now let us proceed to the next question.